this informative webinar. Before we start, it is my pleasure to introduce you to an innovative edtech platform that is transforming the way we approach education. Hunaru is an online learning platform that is designed to make education more accessible, engaging, and effective for students for all ages and backgrounds. The platform offers a wide range of courses in various disciplines from IT, finance, and digital marketing. Whether you are a student looking to enhance your skills or an educator seeking new ways to engage your students, Hunorho has something to offer you. And now I would like to invite Mr. Krishnan Rajgopala to share his expertise, tips, and best practices to achieve goals. So, now, without wasting much time, let's dive to an exciting world of retail banking and wealth management. Over to you, Krishnan. Yeah, thank you, Neha. Hello, good morning, everyone. Uh, so I would encourage the participants to unmute themselves, keep their videos on. We can have a discussion. And this is not something very formal. This is not a classroom kind of a discussion. So we can make it interactive if you guys would participate. Yeah, so somebody, if they could unmute themselves and introduce themselves to me to tell me what they are doing, what they aspire to do in their life. Anybody? Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah. So someone please go ahead. Introduce. Hey, good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Hi, what's your name? Okay, so it's nice to meet you. So anybody else? Yes, sir. Yeah. So Prerna, would you like to go ahead? आवाज नहीं जाएगा मैम. हेलो. Name Nagura. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, I am Shweta Bane from SY BCom. Okay. Shweta, tell me about your aspirations. What do you plan to achieve in your career? Have you made any plans? Sir, I plan for a master in accounts. Okay, okay. And do you plan to join the Big Fours, Deloitte, PwC, EY? So it's okay if you have not made any plans, that's fine. I mean, we are here to help you out, to think about your career, to let you know what are the prospects. Okay, so don't worry. Anybody else? I'll take one last person, then we'll start with the presentation. So anybody would like to volunteer? Okay, so no issues. Let me start with the presentation and let me introduce you to what is wealth management, what is retail banking, and what are the future prospects in your career that you can expect.
Now, before we start with the presentation, there are some things I would like you to know because I've been in the teaching industry since the last 8 years. It's almost 9 years now. So, you guys are pursuing your BCom, BBA, BMS, whatever courses you are pursuing. That's really good. But there are some things that you need to keep in mind if you want to be successful in your career. The first thing is your basic concept should be really, really strong. And then you need to develop the habit of public speaking and interacting with individuals. See, when you go for an interview, you will be obviously interacting with the interviewer. You have to convince him to give you a job. So, speaking and speaking right, the fundamental knowledge, both are equally important. So, I want you guys to focus for the next couple of years and develop these skills. You might be knowing a lot of things, but if you're not able to speak up, then how will you convince the interviewer that he needs to select you and give you an opportunity? So please do that and watch a lot of news, watch a lot of good TV shows. For example, Shark Tank is really good. It helps you to understand business, how people come and present their business to the sharks, and they take their finances, either debt or equity. So that should inspire you to grow as an individual to be successful in your career. So that being said, let me introduce you to what is wealth management and retail banking. My name is Krishnan Gopal Krishnan, and currently I'm based in Pune, but basically I'm from Mumbai. I'm a CFA US charter holder as well as a certified financial planner. I've also done BCom accounting and finance, MCom, etc. So this is the agenda for today. First, I'll be explaining you the concept and why do we need wealth management. Then I'll tell you what are the skill set that you need to develop if you want to make a career in this particular field. Then I'll tell you what are the growth opportunities, what are the different kind of roles that you can get. And then I'll introduce you to retail banking and the kind of roles and opportunities that you can get over there, plus the skill set that you need to develop, and how Hunargo as a platform is going to help you to achieve these kind of goals. Then I'll be taking Q&A if you have any questions. So this is a very famous quote. If you don't find a way to make money while you sleep, then you will be working till you die. So he's Warren Buffett. He's one of the most successful investors in the domain of finance. So many of you might know him. If you don't, then I'm introducing you to the most successful investor. He's a billionaire. He's amongst the top 10 richest people in the world. This quote is really, really important. It tells you that, even when you're sleeping, you should find ways to make money. Then only you will be growing rich. Otherwise, you will be, constantly working a 9 to 6 job, a government job, a private job, and then you'll be frustrated. So investing money and earnings return out of it is a very important concept. So what exactly is wealth management? So how many of you have heard this term before? So can you raise your hand at least? If you're not comfortable speaking, that's fine with me, but please raise your hand. At least you can do that. I hope you guys know how to use Zoom. You might be using it since the last 2, 3 years since COVID. So yeah, any participant who has heard about wealth management, can you please raise your hand? Or you can even unmute and speak. Okay, so Shweta, I think, has raised her hand. Shweta, would you like to tell us about your understanding of wealth management, if you're comfortable? Anybody else? सर बस सुना है. Okay. ठीक है, सुना है वो अच्छी बात है. That's a good start at least. So others, I'll tell you about this concept. So it's a personalized investment advisory service about financial planning and management of financial asset. थोड़ा complicated लग रहा है, but है नहीं. So basically, what you do is you increase your understanding about financial markets, about the different kind of products that are there. For example, we have the stock markets, we have the National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, and you might be seeing on the news that currently Adani shares are going down. People are making a lot of losses. The shares have come down by 80%. I hope you guys follow the news. So these are the kind of news that you tend to get. Then you might heard
You might have heard about mutual funds, and everybody knows that mutual funds are subject to market risk. We have all seen the ads. Then there is your savings account, your fixed deposits that your parents might be having in any of the bank, let's say ICICI, Axis Bank, State Bank, etc. So people know that they have to earn money, and then they spend money, they save money, but then they need some help to understand whatever money they are going to save, where they have to invest. Now, we are not going to be working throughout our life. So let's say I'm 33 years old. I'll be working for, let's say, the next 27 years of my life till I reach 60. Now, after 60, my physical and mental capacity might not support me to earn more, but I still have to continue living, still have to earn, meet my daily expenses of food, clothing, rent, etc. So I need to save sufficient amount of money for the next 27 years so that when I reach 60 and if I plan to retire, and let's say I plan to live till 80 or 90, now you don't know till when you will be alive. But still, till whenever you are alive, you'll be needing some money to support. So this is making a financial plan, making a financial goal that, okay, I need to retire at 60. And after retiring, let's say my monthly expenditures are going to be 60,000 or 1 lakh rupees. So from where that 1 lakh rupees is going to come from, because you're not going to be earning anymore. So you will be totally dependent on your savings. To give you another example, so let's say after some years, you guys might get married and then have a kid, and then your kid will, let's say once he turns 18 or 19 years old, he will say that I want to go abroad for my MBA. So I want to go to the US or UK or Canada. So you know that that is going to be expensive. So today, if you want to send somebody to Canada and US, it is going to cost you somewhere around 40, 50 lakh rupees to meet, let's say, the basic educational needs and your stay requirements. After 20, 30 years, that can even go up to 1.2 CR or 1.5 CR. So you also need to have a financial plan. Now, it is important to give your child good quality education. So you need to save for it. So wealth management is making all these kind of plans for individuals, sitting with them, talking with them, trying to understand how much money they want in the future, what are their plans. Or there can even be somebody who is, let's say, very rich. Now you have got a affluent family, lot of properties. Let's say बहुत सारा जायदाद है, बहुत सारा property है, land है, agricultural land है, buildings है. So you are a multi-millionaire, but still you will be needing some financial help to protect that particular money, to buy insurance for all your assets, to see to it that nobody is cheating you or committing any kind of frauds, to save your money and even help your money grow. So wealth management is helping people achieve their financial goals or managing whatever financial assets they are having. Now, what are our financial assets? So financial assets is the money that you're having in your bank, the gold that your parents might be having. Let's say your mother might be having some jewelry, some gold coins, some gold jewelry, some chains, some earrings. There might be some savings or fixed deposits that your parents might be having in the bank. You might be having some motor cars, or let's say scooters or a bike. You might be having a residential property, a farmhouse, etc. So all these are financial assets. So you will be taking some professional help, or you will be learning about all these things in order to secure these financial assets. The primary function of wealth management is to help the client reach his financial goal. So as I've said, I want to retire when I reach 60. So that is my financial goal. Once I reach 60, I need, let's say, at least 1 lakh rupees a month in order to meet my daily expenses. Now, why do I need 1 lakh rupees a month? Now, all of us know that inflation hai market mein, prices are constantly increasing. So let's say today something is costing, let's take the example of milk. If today milk is costing around 60, 70 rupees a liter, and it is constantly growing, in future, it might even cost 100 rupees a liter or 120 rupees a liter. So all these expenses are going to increase over a period of time because of inflation. So that is why when I retire after 27 years, I need 1 lakh rupees a month. That is the basic amount that I need in order to have a very, very basic lifestyle. Now, there are some other services that wealth managers and financial planners and financial advisors provide. First is tax planning. किसी को टैक्स भरना अच्छा नहीं लगता, and let's say you are earning 10 lakh rupees in a year, उसमें से 2-3 लाख रुपए तुमको गवर्नमेंट को देना है टैक्स में. So nobody likes paying taxes. So there are some ways, some investments that you can make that will help you save tax, and the financial planner is going to help you with that. Retirement planning, this example I've already given to you. Now this is applicable for me.
Then there is risk management and insurance planning. Now we need to buy proper insurance. So COVID ke time mein, a lot of us have seen that many of us have fallen sick. We need to get ourselves admitted in the hospital. किसी किसी का बिल आया 5-6 लाख रुपए, किसी का 15 लाख रुपए का बिल आया, किसी का 25 लाख रुपए का बिल आया. सो अगर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस होता तो ये वाली नौबत नहीं आती. So we also need to help the client to plan for their health, to plan for their lifestyle. Let's say somebody is working in a factory और उस फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो गया एंड यू बिकम हैंडीकैप, सो यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू गो टू वर्क. तो हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर फैमिली? सो देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दैट वी कैन बाय. तो अगर तुम्हारे साथ खुदा ना करे कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो गया, तो फिर आगे जाके इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द मनी, सो योर फैमिली इज टेकन केयर ऑफ. So we need to make these kind of plans to help individuals to have a secure future. The next is estate planning. Now, estate planning is usually for somebody who is already very rich, having a lot of properties. Let's say जायदाद बहुत सारा है, और let's say there is a person who is 70 years old or 80 years old, और उसको ये जायदाद अपने बच्चों में बांटनी है. So that is known as estate planning. तो किसको कितना जाएगा, कब देना है, कब नहीं देना है, किसको नहीं देना है, all that comes under the estate plan. Now, an individual can do all this by himself. For example, I am a certified financial planner, so I will obviously not be taking a help of other individuals. I may not, but usually I do because I'm not an expert in all the domains. So there are some things that you can do by yourself, and there are some areas in which you have to take some help. So an individual can either plan his own finances or he can take the help of a professional. So if you want to make a career in this particular field, there are a lot of things that you need to understand: how the financial market works, how to do the calculations, how to come up with a financial goal, how to help the client meet the financial goal. You also need to know about taxes. You also need to know about life insurance, property insurance, motor insurance, health insurance, etc. So are you guys following? Are you guys liking whatever you are seeing and hearing? Please give me a thumbs up or raise your hand. Do you have any questions? Okay. Do you want me to speak in Hindi, English mix, or do you want to speak do you want me to speak only in English? अगर ऐसा कुछ है तो chat screen में लिख देना. I can do this in either of the languages. Okay, moving on. English. Krishnan, I think I've heard somebody saying Hindi. Okay, ठीक है. I'll speak more in Hindi. Don't worry. So So how many of you are in favor of Hindi? Please write in the chat box so that we are able to understand. yeah, I'll give you 2-3 मिनट ले लेना, और किसी को अगर चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूं तो प्लीज चैट स्क्रीन में लिख देना. Otherwise, I'll use a mix of Hindi and English. Yes, yes, yes. ठीक है. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस कैसे चलती है. तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6. नाउ ये 6 स्टेप्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट देन ये ब्रॉड स्टेप्स है जो यूजुअली फॉलो होते हैं. तो फर्स्ट इज, अगर तुमको किसी की वेल्थ मैनेजमेंट करनी है या किसी को मीट करके उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो क्या करोगे? सबसे पहले यू हैव टू गो एंड मीट द पर्सन. यू हैव टू गैदर हिज इंफॉर्मेशन कि ओके, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कहाँ पे काम करते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, व्हाट इज योर मंथली इनकम, आप कितना एक्सपेंडिचर आपकी कितनी है, क्या आप खुद के घर में रहते हैं, क्या आप रेंट के घर पे रहते हैं. सो यू विल कलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. यू विल ऑल्सो आस्क देम इंश्योरेंस खरीदा है क्या. अगर तुमने खुद से नहीं खरीदा तो ऑफिस में योर एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स यू विद इंश्योरेंस, वैसे कोई सर्विसेज है क्या. सो यू गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट एंड यू राइट इट डाउन. Write it down means not necessarily in a pen and paper. You can also write it down in your laptop or make a soft copy of that. The next is establish goals and objectives. तो तुम उसको पूछोगे कि भैया आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों है, मतलब आपके गोल्स क्या है. तो लेट्स से आई एम मीटिंग समबडी, उसकी 30 इयर्स है, तो हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं. तो लेट्स से आई मीट द हस्बैंड और वो बोलता है कि आई एम अर्निंग, मेरी वाइफ जो है घर की देखभाल करती है, मेरे 2 बच्चे हैं अभी फिलहाल तो छोटे हैं, और उनको मैं स्कूल भेजता हूँ, आई एम एबल टू मीट माई मंथली एक्सपेंडिचर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें से एक लड़का है और एक लड़की. तो देन दैट पर्सन टेल्स मी दैट लड़के को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अब्रॉड भेजूँ ताकि अपना एमबीए करे, तो मुझे इसको अब्रॉड भेजना है आज से 15 साल के बाद.
तो मुझे उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। तो आई विल डू सम कैलकुलेशंस एंड देन आई टेल हिम दैट भाई आपको 70-80 लाख रुपए लग सकते हैं अगर आपको इसको अब्रॉड भेजना है फॉर एमबीए। देन ही विल टेल मी दैट मुझे मेरी बेटी की शादी करवानी है, उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं, खर्चा मीट करना है, तो कितना होगा। तो आई विल टेल हिम दैट उसके लिए भी आपको 50-60 लाख रुपए लगेंगे अगर आपको अच्छी शादी करनी है एकदम लैविश, मतलब बैंड बाजा बारात के साथ। तो ही इज लाइक ओके। तो देन वी विल प्लान कि आज उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि 18-20 साल के बाद ये पैसा बढ़ बढ़ के 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इतने तक बढ़ पाए। तो दैट इज एस्टैब्लिशिंग योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन। तो थर्ड स्टेप में मैं उसको पता करता हूँ, ठीक है आप मुझे ये बताइए आपकी मंथली सैलरी कितनी है। तो वो बोलेगा मेरी मंथली लेट्स से मंथली सैलरी से 1-1.5 लाख रुपए है, एंड देन ये एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होती है। मैं बोलूंगा ठीक है अच्छी बात है। फिर मैं उसको पूछूंगा कि आप इसमें से स्पेंड कितना करते हो। तो बोलेगा मैं 15,000 रुपये रेंट पे देता हूँ या 20,000 रुपये रेंट पे देता हूँ, फिर घर का खर्चा निकाल के आई एम एबल टू सेव लेट अस से 70-80 thousand रुपीज अज्यूमिंग आई एम अर्निंग 1.5 लाख रुपीज। तो मैं बोला ठीक है 70-80 thousand यू आर सेविंग एवरी मंथ। फिर मैं उसको बताऊंगा कि इसको ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करनी है ताकि ये 70-80 हजार रुपए जो मंथ में बचा पा रहा है वो आगे जाके बढ़ के 70-80 लाख रुपए हो जाए। तो दैट इज डेवलपिंग एंड प्रेजेंटिंग अ फाइनेंशियल प्लान कि कहाँ जाके पैसा इन्वेस्ट करना। द नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग। प्लानिंग तो बहुत सारी हो गई, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एंड देन वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। So keeping a track of the investment and monitoring the performance is step number 6। तो एवरी ईयर हम देखेंगे ना कि इन्वेस्टमेंट अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है, पैसे ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 1-2 साल पहले अगर मैंने किसी को बोल दिया होता कि भैया अडानी के शेयर में पैसे डाल दो, तो तभी उसकी शेयर प्राइस चल रही थी 1,500-2,000 रुपए, फिर वो ऊपर तक गई 4,500 रुपए तक। तो लोगों ने बहुत सारे पैसे बनाए, पैसे डबल हो गए 1-2 साल में, किसी किसी को तो 2-3 महीने में डबल हो गए। उसके बाद क्या हुआ अचानक, अभी न्यूज अच्छी नहीं है तो अडानी के शेयर प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है। तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा ना कि भैया आपने शेयर्स बेच दो, इसको और ज्यादा दिन तक नहीं रखना क्योंकि चीजें जो हैं आगे जाके खराब हो सकती हैं। तो ये मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बोल दिया हाँ इतने में पैसे लगा लो और भूल जाओ, तो वैसे नहीं हो सकता। यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। फिर मैं उसको ये भी बोलूंगा कि आपको अगर टैक्स बचानी है तो आप पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है हम साल का 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, तो वहां पे पैसे सेव हो सकती हैं। फिर अगर छोटी बच्ची है उसके लिए हम एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें हम पैसे डाल सकते हैं ताकि व्हेन द गर्ल चाइल्ड कम्स 18 years ऑफ एज तो वो अपने हायर एजुकेशन के लिए या अपने आगे की पढ़ाई के लिए या अपनी शादी के लिए ये पैसा यूज कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो भले ही आपको फाइनेंशियल मैनेजर या वेल्थ मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बनना, स्टिल ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है बिकॉज ये आपको पर्सनल लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं ये सीखूंगा और इस पे नौकरी कर लूंगा, अगर मुझे नौकरी नहीं भी करनी है तो भी ये मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत काम आ सकती है। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दैट कैन बी डन। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, पैसे कहाँ डालनी है, टैक्स बचानी है, किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, किसी को बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, किसी को इंश्योरेंस की प्लानिंग करनी है, और कोई चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मंथली मेरे को इतने पैसे आने चाहिए, तो दैट इज कैश फ्लो प्लानिंग। So these are the different type of plans that people would like to make। इससे भी बहुत ज्यादा होते हैं बट ये सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। आपके क्लाइंट्स कौन कौन होते हैं, तो लेट्स से आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कि मुझे नहीं इस पे करियर बनाना है, मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है और मेरे हिसाब से मैं इसमें बहुत सारा काम कर पाऊंगा और बहुत पैसे कमा पाऊंगा। तो आपके क्लाइंट्स कौन कौन है। सो योर पोटेंशियल क्लाइंट्स आर यंग, मिडिल एज एंड रिटायर्ड इंडिविजुअल्स। तो यंग इंडिविजुअल मतलब जिसको नई नई नौकरी मिली है या फिर जो मंथली थोड़े थोड़े पैसे सेव कर रहा है, जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और थोड़े पैसे सेव कर रहा है, या कोई मिड एज इंडिविजुअल है जिसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और वो 30-40 ईयर्स का है, या फिर कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो रिटायर्ड है 60+, 70+, 80+ एक्सेट्रा। तो ये सारे लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं। फिर इसमें किसी किसी लोग, कोई कोई लोग एम्प्लॉयड होंगे, किसी की गवर्नमेंट जॉब होगी जो बहुत ही सिक्योर्ड है। और अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब में मतलब आपको पेंशन मिल सकती है, आपको हेल्थ कवर होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो उनकी प्लानिंग बहुत अलग होती है। अगर वो बंदा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, रिटायरमेंट के बाद तुमको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग अलग से करनी पड़ती है। फिर कोई कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी खुद की बिजनेस है, कोई प्रोफेशनल है, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ,
और कोई प्रैक्टिशनर है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, किसी की कंसल्टेशन की बिजनेस है, तो इन सब चीज, हर इंसान अलग है, तो हर इंसान की फाइनेंशियल प्लानिंग भी अलग होती है। तो दिस इज अ कस्टमाइज्ड प्लान। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक प्लान बनाऊं और सबको दे दूं। फिर कोई कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई हाउसवाइफ भी है और कोई रिटायर्ड इंडिविजुअल्स भी है जो काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी की वाइफ है, वो 60+ है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को उसको यूज करना है ताकि वो अपना डेली नीड्स को मीट कर सके। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल एक्यूमेन एक्सेट्रा। अब कोई कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, फॉर एग्जाम्पल कोई एमबीए है, कोई कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास किया है। बट एमबीए होना और 12th स्टैंडर्ड पास करने में इसका मतलब ये नहीं है कि एमबीए वाले के पास ज्यादा दिमाग है और 12th स्टैंडर्ड वाले के पास दिमाग नहीं है। तो ये भी पता करना पड़ता है कि सामने वाले बंदे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसको चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, वो अनपढ़ गवार है या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि मुझे सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है। जैसे बहुत लोग को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इसमें पैसे नहीं डालने चाहिए। बट भैया, अगर पैसे लगाओगे नहीं और 70 लाख रुपए कैसे कमाओगे? 70,000 70 लाख रुपए इतनी इजीली तो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। तो आपको फाइनेंशियल गोल एडजस्ट करना पड़ेगा या रिस्क लेना पड़ेगा। तो मुझे सामने वाले को कन्विंस करना है, समझाना पड़ता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि वो कन्विंस होगा या नहीं, समझेगा या नहीं। ऑल दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन उसकी एजुकेशन कितनी है और उसको अंडरस्टैंडिंग कितनी है। The scope of financial planning and portfolio or fund management can also be extended to an institutional level. तो या तो आप रिटेल इंडिविजुअल्स के साथ कर सकते हो, जैसे मैं और आप हैं, या फिर आप ये कंपनी के लिए भी कर सकते हो। लेकिन मैं कंपनी के लिए जो करते हैं उसके बारे में आज बात नहीं करूंगा, बिकॉज लोग यूजुअली स्टार्ट करते हैं ये इंडिविजुअल्स के। अब ये एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, तीन अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, कोई लाइफ स्टेज 1 में है, कोई लाइफ स्टेज 2 में है और कोई लाइफ स्टेज 3 में है। तो जो लाइफ स्टेज 1 में है, अज्यूम करते हैं कि ये बंदा 30 साल का है, और ये लाइफ स्टेज 2 में जो है ये बंदा 50 साल का है, और लाइफ स्टेज 3 में जो है ये बंदा रिटायर्ड है। अब यहाँ पे लिखा है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपके पास जो पैसे हैं वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा। तो जो बंदा बहुत ही यंग है, जो 30 साल की उम्र का है, उसके बहुत सारे पैसे, 65% ऑफ उसका जो पैसा है मैं कहाँ पे लगाऊंगा? स्टॉक्स में लगाऊंगा। स्टॉक्स थोड़े रिस्की हैं, इसमें रिटर्न कमाने काफी टाइम लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है इसमें। तो स्टॉक्स बहुत अच्छा होता है टू फॉर समबडी जो अभी बहुत यंग है और जिसको रिटायर होने के लिए बहुत टाइम है। स्टॉक्स वैसे तो सबके लिए अच्छे हैं, बट देन उसमें कितना पैसा डालना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है बॉन्ड्स। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुना होगा बॉन्ड के बारे में। अगर नहीं सुना है तो बॉन्ड इज वेरी सिमिलर टू अ फिक्स डिपॉजिट। मतलब लेट्स से आप इसमें 1 लाख रुपए आज डालोगे, एवरी ईयर आपको लेट्स से 8% इंटरेस्ट मिलेगा। और लेट्स से ये 10 साल की आपकी फिक्स डिपॉजिट है, तो 10 साल के बाद आपको आपके 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो बॉन्ड्स भी ऐसे ही काम करती है। तो जो बहुत ही यंग इंडिविजुअल है उसकी ज्यादा पैसा मैं स्टॉक्स में डालूंगा, कम पैसा बॉन्ड्स में डालूंगा। बॉन्ड्स में जो है रिटर्न आपको फिक्स मिलती है, स्टॉक्स में रिटर्न फिक्स बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ा बहुत तो रिटर्न जनरेट करना है, इसके लिए मैं थोड़ा पैसा बॉन्ड्स में डालूंगा। फिर लाइफ स्टेज 2 में जो है, अज्यूम करते हैं कि ये बंदा 50 साल का है। 50 साल का है मतलब इसने बहुत साल नौकरी कर ली है, इसने बहुत सारे पैसे बचा लिए होंगे और ये बहुत जल्दी रिटायर होने वाला है। तो अगर हम इसको लाइफ स्टेज 1 वाले के साथ कंपेयर करें, तो ये बंदा जो है सिर्फ 50% ऑफ उसकी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक्स में रख रहा है, सामने वाला 65 रख रहा है और ये सिर्फ 50। इसका बहुत सारा पैसा बॉन्ड्स में जा रहा है और ये थोड़ा बहुत कैश रिजर्व्स भी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 50 साल का है, मतलब उसके बच्चे बड़े होंगे या फिर उसकी बीमारियां होती होंगी, मेडिकल एक्सपेंडिचर मीट करना होगा, तो जिसके लिए कैश बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड हम जिसको बोलते हैं। तो बहुत ही यंग इंडिविजुअल है, उसको शायद इमरजेंसी फंड की जरूरत ना पड़े, बट 50 साल के बंदे को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है। तो वो 5% हमेशा कैश में अपने घर पे रखा रहेगा या सेविंग्स अकाउंट में रखा होगा। जो लाइफ स्टेज 3 वाला बंदा है, तो लेट्स से 60 70 साल का है, उसका मेजोरिटी ऑफ द पैसा बॉन्ड्स में जाता है। उसका मेजोरिटी ऑफ द पैसा बॉन्ड्स में क्यों जाता है? बिकॉज फिक्स रिटर्न मिलती है। अब अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और उसमें मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर मुझे 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये 10 लाख रुपए यूज करके मैं क्या करूंगा? अपना मंथली एक्सपेंडिचर मीट कर पाऊंगा। तो दैट इज वाई जो बंदा रिटायर्ड है उसका बहुत सारा पैसा जाता है बॉन्ड्स में, बिकॉज आपकी रिटर्न फिक्स होती है और आप मंथली एक्सपेंडिचर मीट कर पाते हैं। ये थोड़े पैसे स्टॉक्स में भी डाल के रखता है, बिकॉज लेट्स से जब
इनकी डेथ हो जाएगी, इसको अपने बच्चे या अपने नाती पोते को पैसे देने हैं या फिर कुछ ना कुछ जायदाद छोड़ जानी है, तो उसके लिए पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट सब लोग करते हैं बिकॉज इसमें रिटर्न की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। लाइफ स्टेज 3 में सिर्फ एक चीज है, ये कैश रिजर्व थोड़ा ज्यादा रखता है बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हो सकती हैं जिसकी वजह से पैसे रखने पड़ते हैं। तो यह है एसेट एलोकेशन, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बट ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इतनी सिंपल कभी नहीं होती। बट ये सिर्फ आपके समझने के लिए बिकॉज यू गाइस आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब अगर आपको वेल्थ मैनेजर बनना है तो आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी है। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करती है, इक्विटीज कैसे काम करती है, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कैसे काम करती है, रियल एस्टेट मार्केट फॉर एग्जांपल हाउसिंग मार्केट कैसे काम करती है, इनकम टैक्स रेट्स क्या क्या हैं, किस इनकम पे कितनी टैक्स लगती है, एक्सेट्रा। फिर आपकी थोड़ी बहुत एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए और बेसिक एप्टीट्यूड होनी चाहिए। आपको प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली आना चाहिए। बाकी सारी मैथमेटिक्स जो डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन ज्योमेट्री अलजेब्रा ये सब नहीं आया तो बहुत कोई बात नहीं, बिल्कुल चलेगा, बट प्लस माइनस डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आना ही चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मैंने बोला है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, आज के बाद बात करनी है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। आपको सब कुछ पता होगा बट अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आपको पता है और आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो यू नीड टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर उसके बाद MS एक्सेल करके एक सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड पावर पॉइंट है वैसे एक्सेल भी है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। और आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने आना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल अब सारी चीजें जो है कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं। उसके बाद थोड़ा आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेनी है, काम करोगे तो चीजें पता चलेंगी, आपकी एक्सपीरियंस जनरेट होगी, आपको चैलेंजेस फेस होंगे, आप गलतियां करोगे, आप सीखोगे। तो यू नीड सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। यू ऑल्सो नीड टू स्टे अपडेटेड ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोडक्ट एंड अपडेट्स। तो न्यूज देखना, जानना, पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज करेंटली क्या चल रहा है मार्केट में सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें महंगी होती है, बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है। तो आप CA CFA CFP NISM NCFM ये सब कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब अगर आप ये सारी चीजें सीखते हो और फिर लेट्स से आप हुनर को ज्वाइन करते हो, आप कोर्सेज करते हो, आप इन सब चीजों में अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाते हो, तो आपको किस टाइप की नौकरी मिल सकती है। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद है वेल्थ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। रिटेल बैंकिंग, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। तो रिटेल बैंकिंग बेसिकली जो आप बैंक जाते हो, फॉर एग्जांपल आपके अगर घर के बाहर कोई स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक में आप जाते हो, तो जो लोग ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई आपका कैश ले रहा है, कोई आपका चेक ले रहा है, कोई आपका पासबुक अपडेट कर रहा है, किसी के पास आप जा रहे हो लोन की प्रपोजल लेके, किसी के पास आप जा रहे हो स्कीम्स पता करने के लिए, तो वो सारी जो जॉब प्रोफाइल्स है वो रिटेल बैंकिंग में आती है। देन यू हैव इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम किसी कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, ये पता करते हैं कि इसकी बिजनेस कैसे चल रही है, आगे जाके ये बिजनेस कितनी ग्रो करेगी, ये बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाएगी। तो जो शार्क टैंक में होती है बेसिकली वही काम यहाँ पे होती है, पर थोड़े प्रोफेशनल वे में। क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट का रोल ये होता है कि अगर कोई बैंक के पास आ रहा है ये पूछने कि मुझे 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, मुझे घर खरीदना है, तो क्रेडिट एनालिस्ट ये डिटरमाइन करेगा कि अगर मैं इस बंदे को 50 लाख रुपए लोन दूं तो क्या ये बंदा मुझे पैसे वापस करेगा, क्या इसकी कैपेसिटी है, इसके पास एसेट क्या क्या है, इसके पास नौकरी है, ये नौकरी से कितनी सैलरी कमाता है, सैलरी कहाँ स्पेंड करता है, कितने पैसे बचते हैं, और क्या ये मेरा लोन चुका पाएगा। तो दैट इज द रोल ऑफ अ क्रेडिट एनालिस्ट। तो नेक्स्ट स्टॉक ब्रोकिंग। तो स्टॉक ब्रोकिंग में आप कोई भी फर्म ज्वाइन कर सकते हो, जेरोदा, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, और आप इन्वेस्टर्स को बोल सकते हो ये स्टॉक में पैसे लगाने हैं, ये स्टॉक बेच देना है, ये स्टॉक खरीद लेना है, ये स्टॉक को होल्ड करना है। रिस्क मैनेजमेंट, आप इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कोई LIC का एजेंट होगा, कोई मैक्स इंश्योरेंस का एजेंट होगा, तो आप लोगों से मिलोगे और उनको इंश्योरेंस स्कीम बताओगे और लोग आपसे स्कीम्स खरीदेंगे और पीरियोडिक प्रीमियम भरेंगे। आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो, फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स बेच सकते हो, जो जो टेली कॉलिंग होती है, जिसकी फोन्स हम बिल्कुल ही नहीं उठाते हैं, गाली दे के फोन कट कर देते हैं, वो वाला जो काम करते हैं दैट इज सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब बहुत लोग ये वाली रोल्स प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज सेलिंग करनी पड़ती है,
बट अगर आप एक सक्सेसफुल सेल्समैन है तो आप सबसे ज्यादा कमा सकते हो कंपेयर टू ऑल दी अदर प्रोफाइल्स। तो बहुत ही चैलेंजिंग वाली रोल है। और जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे तो थोड़ी बहुत सेलिंग करनी ही पड़ेगी, तो आपको इस चीज से भागना नहीं है, अपनी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करनी है और कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज करनी है। तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो रिटेल बैंकिंग बेसिकली क्या है? रिटेल बैंकिंग इज आप बैंक में जाते हो और वो बैंक मुझे और आप जैसे लोगों को सर्विस देती है, दैट इज रिटेल बैंकिंग। अगर कोई कंपनी एसबीआई के पास या आईसीआईसीआई के पास जाती है और कंपनी सर्विस एक्सपेक्ट करती है, तो दैट इज कॉर्पोरेट बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग मतलब द बैंक इज सर्विंग कस्टमर्स लाइक मी एंड यू। तो इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द बैंक दैट डील्स विद रिटेल कस्टमर्स। तो आप किसी ब्रांच में जाओगे और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे जो बैंक की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने अपने अकाउंट में, वो रिटेल बैंक है। कस्टमर डिपॉजिट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द बैंक। तो हम जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं, तो बैंक के लिए जो है ये पैसा बैंक यूज करती है किसी और को लोन देने के लिए। तो बैंक के लिए हमारा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक उसको लोन पे देती है, इंटरेस्ट कमाती है और हमको भी इंटरेस्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में जाके 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर ली, बैंक ने मुझे रिटर्न दिया 6%। ये फिक्स डिपॉजिट जो 10 लाख रुपए बैंक ने किसी को लोन पे दे दिया, लोन पे दे दिया 10% में, तो बैंक को मिल रही है 10%, बैंक हमको पास कर रही है 6%। जो डिफरेंस है 4% का, उससे बैंक अपना खर्चा चलाएगी, लोगों को सैलरी देगी, एक्सेट्रा। तो बैंक ऐसे काम करती है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं बैंक में? तो बैंक भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है। फर्स्ट इज सीएएसए। तो ये जो कासा है, दिस इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। मैं और आप जाके सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, और कोई किसी के पास अगर बिजनेस है तो वो जाके करंट अकाउंट ओपन करता है। फिर बहुत सारा बैंक जो आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे वाली क्रेडिट कार्ड है, अमेजोन पे शॉपिंग करो 5% कैशबैक मिल जाएगा। तो ये सारी क्रेडिट कार्ड्स भी बैंक की प्रोडक्ट है। किसी को घर की लोन लेनी है, किसी को कार की लोन लेनी है, किसी को एजुकेशनल लोन लेनी है, किसी को शादी करने के लिए लोन लेनी है, दैट इज पर्सनल लोन। देन यू कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है? फिक्स डिपॉजिट में आप लमसम पैसा डाल दोगे, लेट्स से 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, एक ही टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, फिर उसको आपकी रिटर्न मिलती है। रिकरिंग डिपॉजिट में आप सैलरी कमा रहे हो महीने का 1 लाख, उसमें से 10 हजार रुपए हर महीने आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हो या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डाल रहे हो। तो हर महीना 10-10 हजार रुपए डालना, दिस इज अ रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब रिपीटेड डिपॉजिट। फिर कोई कोई लोग बैंक में जाके लॉकर्स लेते हैं अपना गोल्ड और प्रॉपर्टी पेपर्स और सारे प्रेशियस आइटम्स स्टोर करने के लिए। फिर डेपोसिटरी सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होती है, तो बैंक के पास स्टोर होती है। फिर अगर आपको इंडिया के बाहर जानी है, घूमने फिरने, दुबई जाना है, किसी को यूएस जाना है, यूके जाना है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उस कंट्री की करेंसी। तो आप एसबीआई के पास जाओगे और बोलोगे मुझे लंदन जाना है, मुझे लंदन की करेंसी चाहिए, तो आप करेंसी एक्सचेंज करके वहाँ की करेंसी ले लोगे। फिर ईसीएस, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है और घर का जो गैस का बिल आता है, ये सारी पेमेंट्स ऑटोमेटिकली बैंक जो है कर देती है एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो इसको हम बोलते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। फिर फंड्स ट्रांसफर, मुझे इसको पैसे भेजने हैं, उसके पैसे भेजने हैं, तो आप जो चेक वेक डिपॉजिट करते हो वो सारे फंड्स ट्रांसफर करते हैं। जो लास्ट वाला टर्म है बैंक एश्योरेंस, वो एक नया टर्म है। बैंक जो है आजकल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करती है और अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोन लेते हो, तो वो लोन के साथ साथ एक इंश्योरेंस कवर भी आपको लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेथ हो गई, तो वो लोन का पैसा कौन भरेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो दैट इज बैंक एश्योरेंस। तो सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू योर बैंक कस्टमर्स। फिर अगर आप रिटेल बैंकिंग के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो, तो आपको क्या क्या नौकरी मिल सकती है बैंक। द फर्स्ट इज रिलेशनशिप मैनेजर। तो जब आप पहली बार बैंक में जाते हो या फिर रिपीटेडली बैंक के पास जाते हो, तो एक बंदा है जो, या फिर एक मैडम है जो आपको कॉन्स्टेंटली, आप उन्हीं के पास जाते हो कुछ भी क्वेरी पूछने, तो वो होता है रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपको हेल्प करती है आपके अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन के बारे में। फिर ऑपरेशंस मैनेजर है, फॉर एग्जांपल आपको कैश विड्रॉ करनी है या फिर आपको चेक डिपॉजिट करनी है, पासबुक अपडेट करना है, तो जो काउंटर पे बैठे रहते हैं वो सारे हैं ऑपरेशंस मैनेजर।
ये जो पर्सनल मैनेजर होता है ये HNIs या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होता है। तो जो करोड़पति होते हैं, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो नहीं है, ठीक है, मुकेश अंबानी। तो इनको जो सर्विस देती है इंडिविजुअल्स, इनको असाइन किए जाते हैं कि एक बंदा डेडिकेटेडली मुकेश अंबानी के लिए जो भी उनके क्वेरीज है वो हैंडल करे। तो वो है पर्सनल मैनेजर। फिर ब्रांच मैनेजर जो लोकल ब्रांच को हैंडल करता है, उसके अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, उसके अंदर स्टाफ होते हैं, तो आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो। फिर सेल्स ऑफिसर होते हैं जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सेल करते हैं, कॉल करते हैं लोगों को, लोन्स के लिए कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के लिए कॉल करते हैं, तो वो है सेल्स ऑफिसर। जो टेलीकॉलिंग करते हैं या ब्रांच में भी बैठे रहते हैं, आप जाओगे तो आपको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट इज क्रेडिट अंडरराइटर। जैसे मैंने बताया था, अगर कोई लोन के लिए आ रहा है तो क्या ये बंदा लोन देने लायक है, क्या ये बंदा लोन लेगा तो पैसे रीपे करेगा, कहीं विजय माल्या की तरह भाग तो नहीं जाएगा। तो ये सारी इवैल्यूएशन और एनालिसिस जो करता है वो है क्रेडिट अंडरराइटर। फिर वी हैव कैश हैंडलर, जो कैश के काउंटर पे स्पेसिफिकली बैठते हैं, जिनका रोल बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। तो जो लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, ये उनसे कैश कलेक्ट कर लेते हैं, किसी को विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉल प्रोसेस करते हैं, एक्सेट्रा। आपकी जनरल सैलरी जब आप स्टार्ट करते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो योर सैलरी विल बी समवेयर फ्रॉम 3 लाख रुपीज एंड इट कैन इवन गो अप टू 12 लाख रुपीज। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो MBA करते हैं या BCom BBA खत्म करते हैं, कोर्सेज करते हैं, ये वाले जो हम ऑफर करते हैं। फिर जब ये कंपनीज के पास जाते हैं तो उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है, बिकॉज उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो प्लीज इस पे काम करना। रिटेल बैंकिंग के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले आप कोई बैचलर डिग्री कर लो, तो आप लोग कर ही रहे हैं, BCom BBA, BSc एक्सेट्रा। इंटरपर्सनल स्किल्स, सो दिस इज कम्युनिकेशन स्किल। अब बैंक में काम कर रहे हो तो मुंह खोल के बात तो करना ही पड़ेगा, चुप तो नहीं रह सकते हैं। फिर टीम वर्क एंड लीडरशिप, फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रांच मैनेजर बनना है तो आपको अपने स्टाफ को हैंडल करना है। लिसनिंग स्किल्स, कस्टमर की क्वेरी सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, फिर उनको समझाना पड़ता है, कस्टमर सर्विस स्किल हो गया। फिर प्रोडक्ट नॉलेज, अगर आपको सेलिंग करनी है तो प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। कस्टमर क्वेश्चन पूछेगा कि मैं ये क्यों खरीदूं, तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा, बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने पड़ेंगे। फिर कंप्यूटर ऑपरेट करने आना चाहिए, बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन जो है आजकल ऑनलाइन ही होती है। अब हुनर हो एज अ प्लेटफॉर्म, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम किस तरीके से पढ़ाते हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस देते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हम पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, हम आपको लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, तो इट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब ये मैंने सीखा, ये मैंने कहीं पे अप्लाई किया, मैंने किसी से बात की, मैंने कोई प्रोजेक्ट की, मैंने किसी कंपनी में इंटर्नशिप की, तो इट्स एन ओवरऑल फीलिंग दैट यू गेट। तो इट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो हमारी होती है वो है कैप मेथडोलॉजी। तो CAP methodology is split into concept, application and projects. तो सबसे पहले हम आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे कोई भी हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछता, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पे BCom कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तब बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आप 11th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो हैं आपके एकदम खून में बस जानी चाहिए अब तक। तो ये वाले क्वेश्चन की भी आंसर नहीं देते हैं तो नौकरी उनको हम नहीं देते, एडमिशन भी नहीं देते हैं आगे हायर एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट इज आपकी कॉन्सेप्ट जो है हम एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इक्विटी मार्केट्स के बारे में सीख रहे हो, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हो, तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, अगर इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पैसे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ मॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं, बट आपको एक मॉक पैसा दिया जाएगा, आप रिसर्च कर लो, आप उसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके देखो, फिर आप सीखो कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जा रही है नहीं जा रही है। तो सबसे पहले पैसे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ मॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताएंगे, ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। बट दिस इज नॉट अ कोर्स जिसमें आपको इक्विटी मार्केट्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा जो यूट्यूब में चलती है कि हाँ दिन में 1 लाख रुपए कमाओ, 2 लाख रुपए कमाओ। ये वो वाली कोर्सेज बिल्कुल नहीं है। दीज कोर्सेज आर सस्टेनेबल, मतलब आपको एक नौकरी मिलने के बाद उस कंपनी में आप लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हो, उसके लिए जो जो स्किल सेट है हम वो डेवलप करते हैं।
फिर प्रोजेक्ट्स, वी विल गिव यू सम प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स। किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप में जाओगे, कंपनी आपको प्रोजेक्ट देगी कि इस पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक के बारे में रिसर्च करके लाओ, रिपोर्ट बना के लाओ, प्रेजेंटेशन बना के लाओ। तो ये सारी चीजें पे जो है आप काम करोगे। सो दिस इज द कैप मेथोडोलॉजी। हम आपको देंगे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो आप अपने टाइम पे देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आंसर कर लो। अब प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में एडवांटेज ये है कि आपको नहीं समझ आया, आप रिवाइंड करो, बार बार देख लो, अपने फ्री टाइम पे देख लो। जरूरी नहीं है कि मुझे 10 बजे को ही बैठना है, 11 बजे ही बैठना है। तो कॉलेज की तरह इसमें शेड्यूल नहीं होता। तो अगर आपको रात को देखना है, आप रात में देख लो, दिन में देखना है दिन में देख लो, अपना टाइम ले लो। तो लाइव क्लासेस भी होंगे, तो जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रोफेसर आपको लाइव चीजों के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट कैसे काम कर रही है, स्टॉक प्राइसेस कैसे मूव हो रहे हैं, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें लाइव में भी सिखाई जाएंगी। फिर नॉलेज बैंक है, बहुत सारी रिसोर्सेज है, बुक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो, न्यूज आर्टिकल्स है, केस स्टडीज हैं जो आप अपने टाइम पे पढ़ सकते हो। फिर हम आपकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली लेंगे, आपके स्कोर्स आपको बताएंगे, आपको किस एरिया में इम्प्रूव करना है ये बताएंगे। फिर हम पीरियोडिक असाइनमेंट्स भी देंगे ताकि आप जो सीख रहे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं, ये सब चीज़ें के बारे में भी विल हेल्प यू। एंड देन ये सब करने के बाद वी विल सेंड योर प्रोफाइल्स टू द कंपनीज। कंपनीज विल गिव यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड कंपनीज कैन ऑल्सो गिव यू लाइव प्रोजेक्ट्स। लाइव प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को लेट्स से एक नई मार्केट में बिस्किट बेचनी है। तो लेट्स कोई भी एक छोटा सा गांव ले लो, वहाँ पे एक कंपनी को बिस्किट लॉन्च करनी है। तो आपको बोला जाएगा कि उस पर्टिकुलर गांव में जाकर रिसर्च करके आओ कि किस किस कंपनी की बिस्किट यहाँ पे बिक रही है, लोग बिस्किट खा भी रहे हैं नहीं खा रहे हैं, अगर मैं अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या बिकेगा नहीं बिकेगा, रेट क्या होनी चाहिए, प्राइस पॉइंट क्या होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है लाइव प्रोजेक्ट्स में होती है। तो यू विल बी एबल टू लर्न दिस एस्पेक्ट। तो ये था मेरे साइड से प्रेजेंटेशन। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी। हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो। होप आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो और इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ हो। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन गो अहेड। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्या आपको प्रेजेंटेशन समझ में आई, अच्छा लगा सुन के? आपके बारे में बताओ कि क्या कोई क्वेरी है? एनीबॉडी? अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो यू कैन गिव मी अ लाइक, अ थम्स अप, रेज योर हैंड। तो फिर मुझे एटलीस्ट समझ में आए कि आप लोगों ने सुना। नेहा, ओवर टू यू। Well, thank you, Krishnan, for this insightful and engaging webinar. I would now pleased to introduce our founder and keynote speaker for this webinar. Dr. Ajay Srivastava is a visionary entrepreneur who has been at the forefront of education industry for over 20 plus years. In this webinar, he will be sharing his unique perspective on retail banking and wealth management. We are very confident that his insights will be invaluable in every endeavor of their life. Sir, over to you. Thank you, Neha. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन कि जो आज इस वीडियो को देखने के लिए प्रेजेंट हुए हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट आप में एक अंदर से एक आवाज है आपके अंदर कि आपको कुछ करना है जिंदगी में। नहीं तो जो आपके बाकी फ्रेंड्स है वो तो आज बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है कि क्या हो रहा है ये वेबिनार में, क्या होना चाहिए ये वेबिनार। तो मैं आपको आज हुनर हो के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि हुनर हो प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप हुआ। Krishnan, thank you so much for giving such a wonderful presentation, and it was really insightful and a lot of clarity I think students would have got with your presentation. And thank you sir. so much for sparing your time and making it most valuable for all the learners and the future of our country. Thank you so much. थैंक यू सर। सो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा बच्चों आपके साथ। आज मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि ज्यादा लड़कियां प्रेजेंट हैं और लड़के प्रेजेंट कम हैं। तो लड़कियां ज्यादा सिंसियर दिख रही हैं, लड़के कम सिंसियर दिख रहे हैं। यस और नो? हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने आज ये एक माहौल चुना। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा बात सुन के आपकी।
एक प्रॉब्लम है सब कॉलेजेस के साथ और सब बच्चों के साथ। वो प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं और बीकॉम भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नौकरी की तलाश में निकलते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो ये एक सच्चाई है जो हम सब जानते हैं, और इस सच्चाई को जीतने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो हमने डेवलप किया है वो है हुनर हो। जो कॉलेज का समय होता है वो बहुत 3-4 घंटे 5 घंटे, और बाकी टाइम या तो लड़के हैं वो आवारागर्दी करते हैं, कट्टे पे बैठते हैं, मस्ती करते हैं, राइट, और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जो कुछ बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, जिनको आईफोन लेना है, गर्लफ्रेंड घुमानी है, गर्लफ्रेंड पटानी है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर लेते हैं। किस प्रकार का जॉब करते हैं? वो जोमेटो में जॉब करते हैं, स्विगी में जॉब करते हैं, अलग अलग प्रकार का जॉब कर लेते हैं, या कोई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेता है, राइट। उसके अंदर एक एस्पिरेशन होती है कि मैं खुद से कमाऊं, खुद का आईफोन खुद लूं, खुद की बाइक लूं, गर्लफ्रेंड को घुमाऊं। एक ऐसी एस्पिरेशन पैदा हो जाती है। लड़कियों में भी एस्पिरेशन होती है कि मैं अपने माता पिता पे डिपेंडेंट ना रहूं, मैं खुद का ही कुछ कमाऊं और खुद से ही कुछ करूं। तो इसलिए आज जब आप सब लोग ये प्रेजेंट हैं आज हुनर हो के ये प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने इसलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपके अंदर एक जुनून है और एक दिशा है कि आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अभी अगर मुझे कुछ करना है जिंदगी में, तो टीचर्स जब पढ़ाती हैं या जब मैं कॉलेज जाता हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, या हम लोग मिस कर जाते हैं, या हम कोई लेक्चर बंक कर देते हैं तो और बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। तो क्या हम इसको कैचअप कर सकते हैं इन चीजों को? जो सिंसियर बच्चे हैं वो कैसे कैचअप करेंगे? वो यूट्यूब में जाएंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे कि ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, ये है क्या चीज, इसे मुझे और जानना चाहिए और सीखना चाहिए। और कुछ बच्चे हैं जो इग्नोर करेंगे इन चीजों को, और इग्नोर करेंगे तो उनकी जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत पीछे रह जाती है, और क्लास आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फाइनली बीकॉम तो हो जाता है, लेकिन बीकॉम होने के बाद हम बेकाम हो जाते हैं, काम के लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो समझे नहीं होते, सीखे नहीं होते, और जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म लेके आए हैं हुनर हो, हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं वो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना, पूरा डिटेल में सुना कि वेल्थ मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग क्या होती है, राइट। अगर आपको बैंकिंग में करियर बनाना है तो डेफिनेटली यू कैन लॉग इन एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि वेबसाइट पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कॉन्सेप्ट सीखने तक। अगर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप ये चाहते हो कि मैं इस कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करूं कि मैं कितना सीखा हूं, क्या सीखा हूं, तो आपको एनरोल करना पड़ेगा, एनरोल कोर्स में करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जाके हम आपको इवेल्युएट करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, और आपको एक दिशा दे पाएंगे आगे। Am I clear to everyone? Raise your hands. And many of you don't know how to raise hands. Learn from others. Yeah, I can see only Bharti Singh, Suvita. Very nice. Raising your hands. Oh, Yasmin, Sakshi, Lakshman. Don't worry, I'm not going to ask you any question and make you embarrassed. अब डरो मत, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ मैं ही बोलूंगा आज। इट्स अ मोनोलॉग, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डायलॉग। जब मिलूंगा तब डायलॉग करूंगा। अरे यश ने तो फुटबॉल भेज दी। बड़ा अच्छा लगा यश, थैंक यू सो मच फॉर लवली फुटबॉल। अरे इसे निकाल भी ली फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जो कि इस एंटायर प्लेटफॉर्म में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करें समझने के बाद, तो डेफिनेटली आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। तो जब हम चीजें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो हम उसे जिंदगी में अप्लाई भी करना चाहते हैं कि भाई अगर हमने सीख लिया है इस चीज को, तो हम इसको कैसे अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन के लिए हमें आज की तारीख में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, जिसके तहत आपको इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो ये सोचेंगे कि 3-4 घंटे हम स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, उसके बाद हम डेफिनेटली इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, जहां हम अपनी स्किल को और उठाएंगे और अच्छा करेंगे। क्योंकि जब मैंने इनको सुना, कुमार जी को,
बोलते हुए तो वो लाखों और करोड़ों में बात कर रहे थे। तो लाखों और करोड़ की जो फिगर है, अगर वो आपको अचीव करनी है तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, कोई ना कोई कला को उभारना पड़ेगा अपने अंदर। तो उसके लिए इंटर्नशिप जो एक पहला कदम है, क्या हम तैयार हैं इंटर्नशिप के लिए भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बहुत सारे इंटर्नशिप के ऑप्शंस मिलते हैं। और जो लक्ष्मण, यू हैव गिवन मी अ लॉक, ताला लगा दिया इंटर्नशिप में आपने। चलो, वेरी गुड। सो हमें इंटर्नशिप के ऑप्शंस मिलते हैं, और इंटर्नशिप के द्वारा हम चीजों को और सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। जो जो बच्चे इस कोर्स में एनरोल होंगे, कंपनीज आपको देखना शुरू करेंगी आपका प्रोग्रेस क्या है, आपको ध्यान से देखेंगी कि आप कैसा कर रहे हो, और तुरंत आपको इंटर्नशिप या जॉब का ऑफर मिलेगा अगर आप अच्छा कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे। ये जब सब सुन रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा? एक तो कॉन्सेप्ट समझ गए, इंटर्नशिप का ऑप्शन मिल गया, और उसके बाद इंटर्नशिप जब आप कर रहे हो, तो जिस कंपनी में भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, या तो वो कंपनी आपको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगी, या आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नई कंपनी में ज्वाइन करने का, क्योंकि आप अभी कला सीख चुके हो, अपना हुनर सीख चुके हो। So this is what we look forward to give on our entire platform in the entire journey of a student. ये चीज मुझे तब मालूम पड़ी जब मैं आप जैसे बच्चों के साथ मिलता था, बातें करता था, कॉलेजेस में जाता था, चीजों को समझता था, आपकी रिक्वायरमेंट समझता था। तब जाके हमने सोचा कि ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बने जहां कॉन्सेप्ट फ्रीली अवेलेबल हो। अगर इवेल्युएशन करना है तो जाके मेरे को एनरोल करना पड़े। अगर आप एकलव्य हैं तो आप एक्चुअली कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के ही चीजें समझ सकते हो, सीख सकते हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक फीमेल है जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो देख के इंटरव्यू दिया आईसीआईसीआई बैंक में, वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में। और जैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया, शी गॉट सिलेक्टेड, बट शी वॉज अगेन आस्क्ड फॉर अ सर्टिफिकेट। बट सर्टिफिकेट तो था नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने एनरोल नहीं किया था ये कोर्स के लिए। तो definitely then she enrolled for the course, gave her all the assessments and got the certificate, and now she is working with ICICI Bank in the retail banking division. So this was one of the trials what we had done on Hunar Ho platform. And we are trying to solve your problem on this particular platform. आप जैसे यूथ जो पूरे इंडिया में मौजूद है, इन सब का यही प्रॉब्लम है कि हमें नौकरी चाहिए, और नौकरी अपने हिसाब से चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, अपने हुनर के तरीके से चाहिए। तो इसलिए डेवलपिंग अ हुनर इज अ वेरी की फैक्टर फॉर एवरी वन ऑफ यू एट एन अर्ली एज एंड नाउ। We are going to officially launch the platform in 1 month's time. Meanwhile, you can go log in and learn a lot of concept absolutely free of cost, right? And after a month, once we launch, we also look forward to bring a certification of UGC/AICTE to all the courses, so that these courses are well recognized and well presentable to the companies you are looking forward to applying. जो बच्चे एनरोल होते हैं, वो बच्चों को कंपनीज देखना शुरू कर देती हैं। जो बच्चे एनरोल होते हैं वो बच्चों को कंपनीज देखना शुरू कर देती हैं, उनके प्रोफाइल को देखना शुरू कर देती हैं, उनके जो क्विज दे रहे हैं, वो असेसमेंट दे रहे हैं, उनको देखना शुरू कर देती हैं। अगर वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको देखना शुरू कर देती हैं। और वो चाहेंगी कोई अच्छा अगर हुनर है आपके अंदर, तो डेफिनेटली वो आपको पिक करना चाहेंगी। मिस्टर कृष्णन जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 3 lakhs to 12 lakhs इज दी सैलरी। अगर आपको वो 12 लाख के आंकड़े पे पहुंचना है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आज, राइट? सो आई विश ऑल द लर्नर्स a very best and for their career and for future endeavors. Okay, the college, your college will have coupons. Those students who would like to enroll
and avail free coupons, can definitely get in touch with the college head and Ms. Bharti Singh, and we should give the details. Ms. Bharti Singh, thank you so much for organizing such a wonderful session and bringing the participants on this particular platform. Looking forward to make the difference in the life of all the individuals, all the youth of our country, and so that our country can have a very bright future. Thank you so much, sir, for giving very informative sessions to our students and encourage to develop some important skills for their career. I'm very, it's our pleasure, sir, in our company giving us such kinds of events. Thank you so much, sir. And thank you so much, Bharti ji. Thank you, Krishnan ji, for giving us such a wonderful presentation. And thank you to all the participants. And once again, congratulations to you that you have taken the first step in making and shaping your career. Hunar hai, to qadar hai. Remember this. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank sir, you. for this wonderful session. Have a good day, everyone.